کہ دیکھیں دنیا کو چلانے کے لیے مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے. ایک بھکاری ملک کا نظام نہیں چلا سکتا, زکوٰۃ خور ملک کا نظام نہیں چلا سکتا, اللہ کی لعنت آتی ہے. پھر تو یہ اللہ کی لعنتوں کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ اس جیسی قوم ویسے ہی حکمران. یہ گٹار کی تھاپ پر جس کو لے کے آئے یہ اللہ کی لعنت لے کے آئے. نہیں تو اس آدمی کو, جس شخص کو کرکٹ کا سلیکٹر کا جس کا ٹارگٹ تھا, جس کی ایک سوچ سلیکٹر کے جیسی تھی, اس کو وزیر اعظم بنا کے بٹھایا. تو یہی کہیں گے. اچھا اس کو چھوڑے ابھی, آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کا اگلا چیلنج کیا ہے؟ اگلا چیلنج 2 مہینہ ہے. جنگ ہے, اسٹریٹ اوے جنگ ہے, مانے یا نہ. رام رام متروں, آپ سبھی کا ہاردک سواگت ہے آپ کے اپنے چینل دا ہندوستانی کلچر میں. اور آج ہم آپ سبھی کے لیے ایک زبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں جو آپ سبھی کے لیے بہت ہی گیان وردھک ثابت ہوگا. تو آپ ویڈیو میں انت تک بنے رہیے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اوشیہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جس سے کہ آپ بھی دا ہندوستانی کلچر کا حصہ بنیے. اس ویڈیو کا اوریجنل لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. وقت بہت کم رہ گیا ہے لیکن پاکستان کی معیشت کا ستون جو ہے وہ ٹھوس پتھروں کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ مٹی کے ڈھیر پر تعمیر کیا گیا ہے. فیصل رضا عابدی صاحب, اگین میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جس پاکستان جس چیلنج کے سامنے کھڑا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گا چیلنج, اور اگر اس کو روکنا ہے تو آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ نہیں, یہ نہیں رکے گا, یہ بہت بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو انارکی کی طرف لائیں گے, تباہی بربادی میں جائیں گے, کھانے کو پیسہ نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات, ابھی آپ کہتی ہیں نا 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پھر آپ کہیں گی 8 دن کی ہوئی ہے. پاکستان میں اصل بحران تو بجلی کا آئے گا جو کہ لبنان میں آیا, سیم لبنان کاپی ہوگا پاکستان کے اندر, یہ یاد رکھیے گا. اسی سے منسلک ہے نا. اچھا اس کا بھی ہمارے پاس حل ہے لیکن اس میں 2 سال لگیں گے. آج سے کام شروع کریں تو 2 سال لگیں گے. یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے نمٹا یہ کر دیا. لیکن ابھی آپ فوری طور پہ دیکھیں, دنیا میں تیل کی سب سے کم قیمت اس وقت ایران کی ہے, 1 روپے 80 پیسے لیٹر ان کی پروڈکشن کاسٹ ہے. پاکستانی 1 روپے 80 پیسے. دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی کاسٹ آتی ہے وہ سعودی ارامکو کی آتی ہے, 4 روپے اور 11 پیسے پر لیٹر. آپ آج ہی شہزادے سے رابطہ کریں کہ ہم نے تو اپنا تن من دھن آپ کو دیا ہے بھائی, آپ کا اسلام نافذ کیا ہے, 1400 سال پہلے کا اسلام نہیں, یہ اسلام نافذ کیا ہے. تو ہمیں آپ ڈیفر پیمنٹ پہ ویسے ہی تیل دیجیے جیسے پرویز مشرف کو دیا. اور اگر نہیں دیتے, امیجیٹ پاکستانیوں کا تقاضا ہونا چاہیے کہ سعودی عرب سے فوج کو وڈرا کیا جائے. کس لیے ہم ان کی خدمت ادا کر رہے ہیں, کس لیے ہم ان کی بادشاہت کو سیو کر رہے ہیں؟ ان کی بادشاہت ہمارے ہی بیس پر ہے, یہ یاد رکھیے گا. صحیح کارڈ کھیلیں, کھیلنا آتا ہے تو صحیح کارڈ کھیلیں, ملک کو دیکھیں, پاکستان کی سوچیں. ایک گھڑی پہ نہ بک کے آئیں, بکنا ہے تو اچھے انداز میں بکے, لیکن خریدار کو پتا ہے کہ فقیر کو کتنے میں خریدنا ہے. مسئلہ یہ ہے کوئی کام کا آدمی بھیجیں وہاں نیگوسیشن کرنے کے لیے, 1 گھڑی لا کے وہ بھی بیچ دی 5 کروڑ. ابھی اگر ہم بات کر لیں تو ہم اپنے ریزروز کو بچا سکتے ہیں, اور اگلے ہمارے پاس تو ریزرو نہیں ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں نا, ہم ایک کام کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا پیپر پہ ہوتے ہیں, 180 کا وہاں ہو گیا, 300 کا انڈیا میں ہو گیا, 500 کا. یہ نہ سناؤ مجھے, یہ بتاؤ کہ بلوچستان میں کتنے کا ہے 100 روپے لیٹر. کیسے ایران سے آیا, کیوں 25 روپے میں وہاں کے پیٹرول پمپ سے خریدا, پاکستان میں 30 روپے خرچہ دیا اور یہاں بیچ دیا. میں حل بتا سکتا ہوں آپ کو, 2 حل میں نے, ایک حل ان کو آج بتایا ہے, ایک اگلا بتاؤں گا. ایک حل یہ ہے کہ سیدھا سعودی خاندان سے اپنی دوستی کا کر کے اور آپ ان سے ڈیفر پیمنٹ پہ تیل لو, کیونکہ شہزادوں کے پاس 5 ملین بیرل یوریا کا تیل جمع ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان کو اتنی گہرائی میں لائیں گے کہ ایک دن یہی وزیر اعظم ٹی وی پہ آئے گا اور یہ آپ کو آ کے کہے گا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. یہ تو ناممکنات والی بات ہے. یہ ممکنات اس وقت ہوگا جب یہاں آگ لگ رہی ہوگی, دکانیں لٹ رہی ہوں گی, لوگ لٹ رہے ہوں گے. یہی وزیر اعظم, یہ عالمی طاقتوں کا طے شدہ پلان ہے, یہی وزیر اعظم آ کے کہے گا اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں ڈیفر پیمنٹ پہ تیل ملے گا. اور سب سے بڑا سوال آج کا جو ہر پاکستانی پوچھے, 1.2 بلین ڈالر جو تیل میں سبسڈی دی گئی ہے, اگر آج کے ریٹ پہ لگاؤ تو یہاں پر تیل 80 روپے کا ہونا چاہیے. 80 روپے کا سبسڈی گئی جیب کے اندر, اوپن مارکیٹ سے تیل لیا, اس میں سبسڈائز رقم کھائی, 3 ہاتھوں کو کمیشن دیا, پاکستانی عوام کو دھکیل دیا مہنگائی کے اندر. 200 روپے کا ایوریج. میں نے آپ کو مارچ 2020 میں بتایا تھا کہ اگر میرے کہنے پہ نہیں چلے تو 1 سال میں 200 روپے کا پیٹرول خریدو گے. That's all. 2 مہینے میں ہو بھی رہا ہے ایسا, as per you. Thank you very much. کر دیں یار, بہت ہو گیا نا. آپ لوگ ان باتوں کو چھوڑ دیں. آپ لوگوں نے کبھی اس ملک کو ملک سمجھا ہی نہیں, اس ریاست کو ریاست سمجھا ہی نہیں. صبح اتنے کمانے, رات کو اتنے کمانے. میں تو ایک ایسی ریسرچ دوں گا آپ کو, 12 کسٹم کلیکٹر,
12 कस्टम कलेक्टर, 3 चीफ कलेक्टर, एफबीआर के 6 अरकान और 32 डीसी। सिर्फ इनकी अगर मैंने आपको रिकॉर्ड रख दिया ना तो आपका कर्जा उतर जाएगा। इस मुल्क के अंदर यही तो बात कह रहे हैं इमरान खान साहब भी कि 2 खानदान पैसा वापस लिया, मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, महंगाई खत्म। छोड़े, मैं कह रहा हूं भाई तुम इतनी दुनिया में तुम्हारी सारी जिंदगी भीख पे गुजर गई। तुम्हें उस दिन मैंने समझाया कि आधे घंटे के अंदर इसको रिजर्व कर लो, 18 सेंट पर बैरल में। इनको समझ नहीं आया, इन्होंने सीधा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे सिर्फ एंटर करना था, कोई पैसे थोड़ी देने थे, पैसे तो किस्तों में जाते हैं। सही बात है, क्योंकि आप जो है वो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से मुंसलिक है। बिल्कुल ठीक है, आपको इसमें आम कंप्यूटर नहीं चाहिए था, आपने नहीं किया। आप असल में मसला ये है कि देखें, दुनिया को चलाने के लिए माइंडसेट चाहिए होता है। एक भिखारी मुल्क का निजाम नहीं चला सकता, ज़कातखोर मुल्क का निजाम नहीं चला सकता, अल्लाह की लानत आती है फिर। तो ये अल्लाह की लानतों को कैसे कवर किया जा सकता है? इस मुल्क में पाकिस्तानी बन के किया जा सकता है। पाकिस्तान का सोचना शुरू करें, इन औलादों को इन मुस्तकबिल क्या देंगे आप? अगर पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल होनी है, तेल नहीं है आपके पास? हाँ। नहीं है? अच्छा, पूरी दुनिया के ये तेल का बताते हैं, फला जगह इतने का, ये क्या कहते हैं जी, दुनिया में बहुत महंगा तेल है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सस्ता तेल है। हाँ। अच्छा ठीक है, आप रुपए को आज 10% डिवैल्यू कर दें तो ये कल को कहेंगे 224 रुपए पे पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया में तेल। मतलब अपने रुपए को तुम तबाह बर्बाद करके दुनिया से मुआवजा करके क्या हमें बेवकूफ समझा हुआ है? तुमने पाकिस्तान के साथ वो हाल किया है कि जब जरदारी या नवाज गए थे हुकूमत से तो तुम कहते थे कि खजाना लूट गया है। आज आके खोल के देखो, पाकिस्तान में तहजीब, सकाफत और माशरा लूट गया है। तुम पाकिस्तान को बचाने की बात करते हो। आप ये जो आज मैं आपको बताऊंगा ना जी सर, आपने उस पर चलना। ठीक है, आप सीधा सीधा शहजादे के पास जाएं और बोले 55 साल हमने तुम्हारी खिदमत की है और हमारी फौजें तुम्हारे मुल्क को मुस्तहकम रख के बैठी हैं, तेल डेफर पेमेंट पे देते हो वरना फौज वापस निकालें। 72 घंटे में इंटरनेशनल अफेयर्स को इनकी बादशाह ऐसे गिरेगी। ये आप ही ने संभाल रखी है। हाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स में बहरहाल आपको अपनी नहीं, अब हम डू एंड डाई की पोजीशन पे आ गए। आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, मैं आपकी बात समझते हुए बात कर रही हूं। सुने, अगले हफ्ते 11 रुपए 37 पैसे का इजाफा नागजीर है, ये होना है। आपको 200 से ऊपर का जहन बनाना है। 2 महीने बहुत क्रुशल हैं, 2 महीने बहुत क्रुशल है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसी 2 महीने में अनारकी ने जन्म लेना है। थे अभी तो इमरान खान साहब गए थे, आपको मैं कह रही हूं। वो तो घड़ी लेके आ जाता है ना, फिर बात बेच देता है, हमारा नाक कटवा देता है पूरी दुनिया के अंदर। ये कोई तरीका है? अच्छा, 1 मिनट रुक जाए, मुझे ये बताएं कि अभी हम तेल के ऊपर दोबारा आते हैं। मुझे सिर्फ इतना ये बता दें कि इन 2 महीने में आप कह रहे हैं ना क्रूशल टाइम है और इसमें आपको संजीदा फैसले करने होंगे, ठीक है? लेकिन 1 मिनट सुने ना, वो WHO जो है जिसके ऊपर आपने बहुत काम किया और बताया सारों को, वो कह रहे हैं कि कोविड दोबारा आएगा। आपको लग रहा है दोबारा आएगा और फिर ये नया कुछ एक नई डेवलपमेंट पाकिस्तान में कोई कोविड नहीं आया। मैंने यहाँ पे बैठ के गारंटी दी थी कि जिस दिन आएगा मैं इसको 24 घंटे में ट्रैक करूंगा और 21 दिन में इसको बहरा अरब में गर्क कर दूंगा। मैं अब आपको ये पूरी गारंटी इंश्योर करता हूं। आप बेफिक्र होकर बैठे, कोविड से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कोविड तो इसलिए लाया गया, होने जा रही है ना, मैं ये कह रही हूं आपको। दुनिया तो बंद हुई तो तेल जखीरा हुआ ना, अब तो तेल बिक गया, दोबारा होगा। अब नहीं होगा ना, जो बिकना था वो बिक गया। उसमें देखें, डोनाल्ड ट्रंप के हमारे प्रोग्राम के 4 घंटे बाद अल्फाज ये थे कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर के अंदर तेल का इजाफा कर दिया। हमने तारीखी गिरावट का फायदा उठाते हुए, मंदी का फायदा उठाते हुए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं भी आधे घंटे पहले आप उस वक्त यही बता रहा था कि ये 100 साल के लिए स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको भी तो 10 साल के लिए स्टोर करना चाहिए था ना, तो पेपरों में स्टोर होता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। दुनिया में 5 बिलियन बैरल। 1 मिनट सुने, आप कह रहे पेपर में स्टोर होता है, वो तो कहते हैं कि भाई आप 14 दिन से ज्यादा, 11 दिन से ज्यादा तो आपने रिजर्व ही नहीं कर सकते हो। कौम वैसे ही हुक्मरान। ये गिटार की थाप पर जिसको लेके आए, ये अल्लाह की लानत लेके आए। नहीं तो इस आदमी को, जिस शख्स को क्रिकेट का सिलेक्टर का जिसका टारगेट था, जिसकी एक सोच सिलेक्टर के जैसी थी, उसको वजीर आजम बना के बिठाया, तो यही कहेंगे। अच्छा, उसको छोड़े अभी। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का अगला चैलेंज क्या है? अगला चैलेंज 2 महीना है, स्ट्रेट अवे जंग है, माने या ना माने। क्या है? बेशक हमारे बाद इस पे फिर पाबंदी लगाओ हमारे पास पाकिस्तान पे आने पे, लेकिन ये जंग को सबसे पहले हम अपने सीने पे रोकेंगे। हमारे में इतनी ताकत है कि हमें पता है रूथचाइल्ड क्या सोचता है, बिल एंड मेलिंडा गेट क्या सोचता है, CIA क्या सोचती है, होमलैंड सिक्योरिटी क्या सोचती है। उसके ठीक 2 घंटे बाद वो सोच हमारे पास आती है और हम इसको डिकोड करते हैं।
हम अपनी पॉलिसीज मुरतब करके कुछ नहीं कर सकते, अलावा इसके कि इसको पूरी दुनिया में खोल के इनको नुकसान पहुंचाते हैं, और सारा उसका आफ्टर शॉक हमारे सीने पे आता है। 5 मुल्कों में ब्लैकलिस्ट किया गया उस प्रोग्राम के बाद, तमाम वीजे कैंसिल किए गए, ट्रैवलिंग पे पाबंदी आयद की गई, गिरफ्तारी के हुक्म जारी हुए हैं 5 मुल्कों के अंदर सिर्फ उस प्रोग्राम की वजह से, और उसको ट्रैक करने में 5 साल लगे। 5 साल की मेहनत का ये सिला दिया आज इस पोजीशन पे आप लोग। उस वक्त लोग ठट्टे मार रहे थे, सहाफी कह रहे थे समंदर में बह गया, ये सहाफी आपके, यही मैं वापस आ रही हूं, ब्रेक ले लेते। मेरे रिकॉर्ड में अभी तक नहीं है कि हमें कोई सब्सिडी मिली है वहां से। जो अभी लास्ट विजिट जब आप ओपन मार्केट से ले रहे हैं तो सब्सिडी किस चीज की है भाई? सोचने वाली बात है। सब्सिडी तो ये होती कि आप मोहम्मद बिन सलमान के पास जाते, उससे कहते कि आपको हमने 55 साल से आपका नाफिज करदा इस्लाम पाकिस्तान में नाफिज किया, आपको तमाम महकमे हमने कौड़ियों के मोल आपको मालिक बना दिया, 1 लाख एकड़ हमने आपको अराजी तोहफे में दे दी, हमने आपकी जिद की वजह से आज तक ईरान से सस्ता तरीन तेल नहीं उठाया, हमने आपके लिए पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, आपकी बादशाहत की तमाम हिफाजत हम कर रहे हैं, आपके अगर हम ना हो, बीच में हमारी फौज ना हो तो 72 घंटे में ये शहजादे एक दूसरे को कत्ल कर दें। हमने तो वो मैकेनिज्म कायम किया है जो आपकी बादशाहत चल रही है आज तक, और उसके बावजूद अगर हम ओपन मार्केट से तेल ले रहे हैं तो आपकी हमारी दोस्ती किस काम की? क्यों पाकिस्तान के साथ ये धोखा किया जा रहा है? आपको पता है परवेज मुशर्रफ का दौर यहां बताया जाता है कि बहुत अच्छा था। वजह क्या थी? वजह बताइए। वजह ये थी कि शाह अब्दुल्ला ने पूरे टेन्योर के अंदर आपको डेफर पेमेंट पे तेल दिया, जिसकी वजह से डॉलर भी आपका स्टेबल रहा, आपकी महंगाई भी स्टेबल रही। तो यही फार्मूला आप क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? उसकी वजह यह है कि आर्मी ताकतों ने आपको तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में अगले 60 दिन के अंदर आलमी जंग के आगाज के शाखसाने खुल चुके हैं, ये मैं बता चुका। 28 सितंबर 2021 को हम इस कोड को डी कोड कर गए कि पहला नंबर ही पाकिस्तान है, आलमी जंग का आगाज ही पाकिस्तान से होना है वाया दाइश, और सबसे पहला निशाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाना है, दूसरा निशाना दरूद और सलाम पढ़ने वालों को बनाना है, तीसरा निशाना हर उस आदमी को बनाना है जिसके पास पैसा है। तो आप जंग की तरफ तेजी से जा रहे हैं, अनारकी फैलाना आलमी ताकतों का मकसद है पाकिस्तान में। कोई आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आप ये 80 और 85 पे जहन ना लाए, $120 पर बैरल पे जाएगा ये तेल अगले 1 महीने के अंदर, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ होना है वो 2 महीनों में होना है। देखें मेरी बात गौर से सुने, 2 महीनों में होना है। क्या होना है? जंग होनी है। 2 महीनों में जंग होनी है? जंग का आगाज होना है भाई। कहां बैठे हैं आप लोग? कौन से आप कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। चले मैं आपको समझाता हूं। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, 2 महीने में जंग हो जाएगी? आलमी जंग का आगाज होना है, जंग वंग नहीं, आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग का आगाज होना है भाई, इसी साल होना है। ये तो मैंने पिछले साल बता दिया था। हम इसको इस साल हो जाएगा। ईरान पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करना था कि पहले कहां जाएं, तो पहले अब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है। ये 100% कंफर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स को वाया दाइश टेक ओवर करके और फिर पाकिस्तानी एसेट से ईरान से स्टेट वॉर लड़ना उनका मंजिल है। तो हमने अपने मुल्क को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज बनाने के लिए मैदान पकड़ लिया। हम तो बने ही मैदान जंग के लिए, हम तो 20 साल से बता रहे हैं हम जंग लड़ने आए। तो सियासत इनको करने दें, आलमी जंग मैं संभालूंगा, जिसकी कमांड मैं खुद करूंगा। मैं इन आलमी ताकतों को शिकस्त दूंगा। पहले पैरेलल अंदाज में अपने मुल्क को इस पेट्रोल के बहरान से निकालना है, क्योंकि यही तो आपको जंग की तरफ लेके जाएगा। अनारकी तो फैल रही है। देखें मेरी बात सुने, दुनिया में 5 तरफ नजर डालें आप, हो क्या रहा है। लबनान के अंदर इन्होंने यही फार्मूला अपनाया, पेट्रोल क्राइसिस डाला, पेट्रोल वहां के लोग एक दूसरे पे आरपीजी से जंग करने आ गए, इस वक्त मैदान जंग बन गया। बिल्कुल दुरुस्त। कैसे रुका? ईरान का तेल पहुंच गया। वेनेजुएला में अनारकी फूटने के बिल्कुल करीब अभी थी, ईरान का तेल पहुंच गया। बहरा फिलिपाइन के अंदर ताइवान को सामने रखते हुए ताजे बर्तानिया के बहरी बेड़े की सरबराही में 7 मुल्कों के बहरी बेड़े वहां जंग के लिए चाइना से पहुंचे। चाइना के 57 फाइटर जेट ने ताइवान पे नो फ्लाई जोन पे परवाज करके उनको मुंह की खानी पड़ी, और वहां से ये रिवर्स हुए। लबनान से ये रिवर्स हुए, वेनेजुएला से ये रिवर्स हुए, ईरान से इन्होंने अपने आप को पीछे किया, और अब पूरा जोर इनका पाकिस्तान पे आ गया। 110% पाकिस्तान निशाना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 ब्लॉकों में तकसीम करना, उनको आपस में लड़ाना, और फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को टेक ओवर करके और यहाँ के एसेट्स को टेक ओवर करना, फिर आलमी जंग की तरफ ले जाना। ये पूरा फार्मूला है। बिल्कुल ठीक है फैसल साहब, मैं आपकी बात से 100% चले, आप जो बात करें ना इत्तेफाक कर